the fifth session of class 9 chapter fundamental unit of life. Now we are going to study about some more organelles, and that organelles is Golgi bodies, that is along with the endoplasmic reticulum help cell to store the protein prepared by endoplasmic reticulum. They can make the package, make the package and help them to transport inside the cell as well as outside the cell. It means this is the warehouse or कह सकते हैं stored house of the cell, where cell stored all the essential requirement for the functioning of the cell. Okay, let us move. What does Golgi bodies consist of? It consists of membrane bound cisternae. This is the bag-like structure, arrange one above the another. एक के ऊपर दूसरा अरेंज रहता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्ने, अरेंज वन ओवर द अनदर, एंड देयर इज a large vacuoles inside them. There is a large vacuoles also where all the material are stored after packaging. Okay, तो क्या होता है? At first all the material are taken from endoplasmic reticulum, from the rough endoplasmic reticulum or smooth endoplasmic reticulum, and that material is taken in cisternae. कहाँ रखा जाता है? cisternae में, and then in vacuoles. These are the two parts. First step, it is taken in cisternae, then filled up in vacuoles, and after that they are modified and for the useful purposes, काम आने के लिए जिस तरीके से प्रैक्टिस जरूरी है, जिस तरीके का मटेरियल जरूरी है सेल को, उसके अनुसार उस मटेरियल का पैकेज बना के किधर रखा जाता है? वेसिकल्स. किस में रखा जाता है? वेसिकल्स में. तीन चीज हो गया, सिस्टर्ने, फूड वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स. सबसे पहले कहाँ आया? सिस्टर्ने, फिर वैक्यूल्स, और लास्ट में कहाँ जमा हो जाता है? वेसिकल्स में. एंड देन इट इज चैनलाइज और transferred where there is either inside or outside the cell. It means the main function of Golgi bodies is releasing something. It is the organelles that release something to the inside the cell or outside the cell. कुछ secrete करता है, release करता है inside the cell and outside the cell. But at first they take the material from the endoplasmic reticulum. Must memorize it. Okay, now the first function is to store, modify and package protein, fats and other material inside the cell. Okay, now and after that packaging of the material, they will they dispatch either the inside of the cell or outside the cell. We have already discussed. तो मेन क्या हो गया? Golgi bodies are responsible for packaging, storage, modification and distribution of the material. Okay, now the second function is it converts some cases the simple sugar into the complex sugar so that different organelles can utilize it. पहला समझ में आया? पैकेजिंग, dispatching, transportation. Second, changing of simple sugar into the complex sugar. And the third function is they are involved in the formation of lysosome and peroxisome is the third function of Golgi bodies. And the last but not the least, it helps in the cell division. During cell division, it helps to form the plate. जो बाउंड्री होता है उसको बनाने का काम करता है. This is the fourth function of the Golgi bodies. Okay, now let us think about two other organelles that are single bounded. सिंगल लेयर का उसके पास मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होता है, दैट इज लाइसोसोम्स. ओके, एंड लाइसोसोम्स आर जस्ट लाइक क्लीनिंग एजेंट ऑफ द सेल. लाइसोसोम्स हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट digest the foreign material or the waste material that is not essential for the cell.
Okay, and sometime the cell release so much digestive enzymes that cell itself break out. It means जब सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो जाता है या सेल के अंदर काम नहीं होता है, लेकिन ये तो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम्स जब सेल क्या हो जाता है, व्हेन सेल बिकेम इल, कह सकते हैं जब सेल बीमार हो जाता है, ठीक है, वीक हो जाता है, तो सेल अपना प्रोसेस पूरा नहीं कर पाता है, उस समय ये लाइसोसोम क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। सेल को क्या कर देता है, ब्रस्ट कर देता है। तो सेल गया, लाइसोसोम भी गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग? बिकॉज इट ब्रस्ट आउट द सेल एंड इवन डाइजेस्ट द सेल, सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या काम हो गया, लाइसोसोम का क्या काम हो गया, लाइसोसोम हेल्प टू क्लीन द सेल, क्या करता है, सेल को क्लीन करता है, सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करता है और सेल से बाहर निकालता है। ठीक है, और सम टाइम व्हेन सेल बिकेम वीक it burst out the cell and damage the cell itself, therefore it is called suicide bag. Now this is the perexiosome, very small spherical bodies, even they are having no bound membrane, they are having oxidizing enzymes. Perexiosome have oxidizing enzymes. ये perexiosome के पास क्या होता है, oxidizing enzymes होता है जो लीवर और किडनी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इन लीवर एंड किडनी जी पेरेक्सियोसोम रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाय ऑक्सीडाइजिंग देम, क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज करके रिमूव कर देता है। यानी ये देखिए लाइसोसोम और पेरेक्सियोसोम दोनों क्या करता है, जो अनवांटेड मटेरियल है वो दोनों को रिमूव करता है। ठीक है, ये भी ऑर्गेनेल्स हो गया, समझ में आ गया। बट इन प्लांट इट हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन, जो लाइट का केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस करता है, उस समय ये पेरेक्सियोसोम उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो पेरेक्सियोसोम का फंक्शंस क्या होगा, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है मटेरियल को, है ना, रिमूव करता है टॉक्सिक सब्सटेंस जो लीवर और किडनी में होता है, और प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, फोटो रेस्पिरेशन में। अभी मैं एक और बात बता दूं, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देखा था, वो लीवर के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है, स्पेशली लीवर सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है, वो भी क्या कर देता है कि डिटॉक्सिफाई कर देता है किसको, पॉइजन्स और ड्रग्स को। अगर एक्सीडेंटली कुछ ऐसा चीज़ चला गया जो पॉइजन और ड्रग्स है तो हमारे लीवर के अंदर ज़्यादा, तो लीवर उसको क्लीन करने की कोशिश करता है, डिटॉक्सिफाई, जिससे हमारे ऊपर उसका नुकसान ना हो सके। तो ये रहा आज आपके पास सामने गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, पेरेक्सियोसोम और थोड़ा सा फंक्शन किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, ओके, बढ़े आगे, याद रहेगा। गोल्गी बॉडीज क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल लेता है, रखता है, उसको मॉडिफाई करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है इनसाइड और आउटसाइड द सेल। लाइसोसोम्स क्या होता है, ये जो सेल है उसके वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करता है और सेल को क्लीन करता है। सेल जब वीक हो जाता है ये लाइसोसोम सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए उसको सुसाइड बैग बोलते हैं। पेरेक्सियोसोम्स क्या होता है, स्मॉल इन नंबर्स, बहुत छोटा होता है, हेयर एंड देयर, वो क्या कर देता है, पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही स्प्रेड रहता है, और इसका काम क्या होता है, लीवर और किडनी में ये अपने ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने की कोशिश करता है। यानी ये जब हमारे बॉडी को इमरजेंसी में जब रेस्पिरेशन करना रहता है और एनर्जी निकालना रहता है, अभी आप पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज करता है बाय ऑक्सीडाइजिंग द फूड मटेरियल। तो ये इमरजेंसी केस में, ये पेरेक्सियोसोम इमरजेंसी केस में हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी ये सप्लीमेंट है,
माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, ये सप्लीमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया तो अपना फंक्शन करता ही है, एनर्जी रिलीज करता है, साथ में कौन रिलीज करता है, पेरिक्सोसोम, ये गुड वर्क करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज, इसके पास भी ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होता है। समझ में आ गई बात? ओके, पढ़ते हैं आगे वाला टॉपिक। तब तक इसको क्या करिए, कॉपी में लिखो फटाफट। चलिए फटाफट आज पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अभी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये सेल के अंदर वैसा ऑर्गेनेल्स है जो सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसका शेप होता है रॉड शेप, इसमें दो बाहर से स्ट्रक्चर होता है, दो बाउंड लेयर होता है उसके पास। जो बाहर वाला कवरिंग होता है वो तो आपको दिखता है, लेकिन जो अंदर वाला कवरिंग होता है वो चेंज हो जाता है, किसमें, फोल्ड होके क्या बना लेता है, क्रिस्टे बना लेता है। जो क्रिस्टे का काम होता है सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा खाना क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा खाना का ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन मीन्स रेस्पिरेशन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डेवलप हो, एनर्जी रिलीज हो। वो एनर्जी जो रिलीज होता है वो फॉस्फेट आयन के रूप में होता है। किस आयन के रूप में होता है, फॉस्फेट आयन के रूप में। और 3 फॉस्फेट आयन का एक ग्रुप बनता है जिसको हम लोग एटीपी बोलते हैं। कितने आयन का ग्रुप बनता है, 3 आयन का ग्रुप बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी। और जब भी एनर्जी यूज करना रहता है सेल को तो उसमें एक एटीपी ले लेता है और बचता क्या है, एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट किस फॉर्म में रहता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, यानी 3 फॉस्फेट आयन के रूप में रहता है। जब एनर्जी लेना पड़ता है तो उसमें एक एनर्जी ले लिया और बचा क्या चीज, 2 फॉस्फेट आयन। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसका काम क्या होगा पता चल गया, ये फूड को ऑक्सीडाइज करता है और क्या रिलीज करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड द सेल यूजेस द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। दैट्स व्हाई एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। क्यों बोलते हैं एनर्जी करेंसी, क्योंकि सेल अपने काम के लिए, अपनी यूटिलाइजेशन के लिए एनर्जी कहाँ से लेता है, एटीपी से लेता है। इसलिए एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया और भी स्पेशल है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में वो चीज है जो किसी और सेल ऑर्गेनेल्स के पास नहीं होता है, वो है उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम। ये खुद अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है और उस प्रोटीन को डीएनए के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, याद रखिएगा। किसके पास नहीं होता है, तो जो आपको प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट्स पढ़ाया था आपने, ओके। और जो ममेलियंस होता है आरबीसी, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। हम लोग के पास, याद रखना, पूरे ब्लड सेल और सबके पास है और सभी सेल के पास है एक्सेप्ट द रेड ब्लड सेल जिसके पास क्या नहीं है, आरबीसी नहीं है। याद रखना, रेड ब्लड सेल के पास आरबीसी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आरबीसी होता तो रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन ले जा रहा वो उसी समय क्या करता है, उस ऑक्सीजन के हेल्प कर लेके और फूड को क्या कर लेता है भैया, रेस्पायर करके एनर्जी निकाल देता है। तो हमारे बॉडी के अलग अलग सेल के पास ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता है। याद रहेगा, रेड ब्लड सेल्स के पास अपना आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इवन इन प्लांट ऑल्सो। प्लांट भी दिन और रात सभी समय वो रेस्पिरेशन करता है, और रेस्पिरेशन जब करता है तो वो भी ऑक्सीजन निकालता है, लेकिन ऑक्सीजन का रेट, निकालने का रेट, रेस्पिरेशन का रेट प्लांट में कम होता है इन द कंपेरिजन ऑफ एनिमल, क्योंकि एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना रहता है, इसलिए उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए और प्लांट को कम चाहिए। ये कंफ्यूज मत होना कि एनिमल तो करता है रेस्पिरेशन लेकिन प्लांट नहीं करता है। प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनिमल में भी होता है, लेकिन प्लांट में रेस्पिरेशन का रेट कम होता है और एनिमल में ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लांट को एनर्जी कम चाहिए और एनिमल को एनर्जी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में रहता है समझ में आ गया, एटीपी के फॉर्म में, यानी 3 फॉस्फेट आयन के रूप में रहता है। जब भी यूज करना रहता है तो एक फॉस्फेट आयन का यूज करता है और बच जाता है 2, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। चलो बात करते हैं आगे। इट इज़ द लास्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स कोई अगर है तो वो ऑर्गेनेल्स कौन सा है, एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट के अंदर है प्लास्टिड्स। अच्छा, आगे दिमाग में प्लास्टिड्स, चलो पढ़ते हैं प्लास्टिड्स के बारे में, थोड़ी दुनिया देखते हैं। प्लांट के अंदर वैसा स्पेशल ऑर्गेनेल्स जो प्लांट को भोजन बनाने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ किसके अंदर होता है, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। किस में होता है, प्लांट में होता है, लेकिन एनिमल में नहीं होता है। प्लांट के पास जो प्लास्टिड्स होता है उसके पास भी अपना डीएनए और आरएनए होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और आरएनए होता है, वैसे ही प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और आरएनए कन्फर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड 3 तरह का होता है। प्लास्टिड कितने तरह का हो गया, 3 तरह का। क्लोरोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिस कारण से वो ग्रीन दिखता है। याद रखना, सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है भैया? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इसलिए दिखता है क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा क्या है? ग्रीन पिगमेंट कलर है। लेकिन याद रखना उसके अलावा येलो कलर पिगमेंट भी है। किस कलर का है? येलो कलर का भी पिगमेंट है, ठीक है। लेकिन येलो कलर का पिगमेंट ग्रीन कलर के पिगमेंट से कम है, इसलिए वो कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है। अब चलो अंदर चल के बात बताते हैं, थोड़ा सा बताते हैं अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप जाओगे तो आपको कैसा दिखेगा? ये डब्बा है क्लोरोप्लास्ट का, इस डब्बे के अंदर ढेर सारा बैग रखा हुआ है, इस टाइप का बैग रखा हुआ है, इस टाइप का बैग रखा हुआ, और बैग के अंदर ढेर सारा लिक्विड है। और ये जो बैग है वो हो गया क्या चीज? ग्रेना। और ये जो लिक्विड है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। जो लिक्विड भरा हुआ मैट्रिक्स इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर जो दूसरा रखा उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब ग्रेना बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। बताते हैं दोनों का फंक्शन क्या है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लिक्विड जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। याद रखना क्या होता है दिन के समय। अभी बड़ी ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दो। रियल में फोटोसिंथेसिस कब होता है? लोग का मानना है, ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है, यानी फोटोसिंथेसिस दिन में ही होता है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। लेकिन ये भ्रम है, गलत है। फोटोसिंथेसिस दिन में नहीं होता है। दिन में सिर्फ इतना होता है कि ये जो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, वो पिगमेंट का काम होता है जो सन का जो सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। केवल सोलर एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। वो सोलर एनर्जी रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। अलग अलग एनर्जी फॉर्मेट में उसको स्टोर किया जाता है। क्लास 10th में जब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस तो और इसके बारे में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन में। अभी इतना जान लेना कि जो एनर्जी सोलर है, सोलर एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में यूज करने के लिए स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। और जो स्टोर रहता है सोलर एनर्जी, वो रात में, यानी लाइट रिएक्शन में सिर्फ सोलर एनर्जी ट्रैप किया जाता है दिन में, और रात में उस सोलर एनर्जी का यूज करके क्या किया जाता है? यानी इसका काम होता है क्या लेना? सोलर एनर्जी ले लेना। और इसका काम होता है पानी को तोड़ देना। किसमें? ये पानी को तोड़ देता है, H2O को ब्रेक कर देता है H2 + O2 में। और इसके साथ क्या मिल जाता है? इसके साथ मिल जाता है CO2, तब बन जाता है C6H12O6। यानी याद रहेगा भाई, पक्का बात है, याद रहेगा। क्या होता है? क्या होता है सर? दिन के टाइम में सोलर एनर्जी ले लिया, रात के टाइम में सोलर एनर्जी का यूज करके वाटर को ब्रेक किया। किसमें? H2 और O2 में। ये H2 और O2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल गए और क्या बना दिया? ग्लूकोज, और रिलीज कर दिया ऑक्सीजन। याद रहेगा बात? ये डार्क रिएक्शन है, रात के दिनों में होता है। फोटोसिंथेसिस का रियल ग्लूकोज का फॉर्मेशन रात में होता है, दिन में नहीं होता है। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा हमारे पास दूसरा टाइप का क्लोरोप्लास्ट हो गया, वो है दूसरे टाइप का प्लास्टिड जो है वो है क्लोरोप्लास्ट की बहुत कलर का होता है, अलग अलग कलर का होता है। जो लीव्स आपको दिखता है अलग कलर का, जो फ्रूट अलग अलग कलर का दिखता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ डिफरेंट कलर, वो अलग अलग कलर का होता है। जो फ्रूट का कलर देता है और फ्लावर को कलर देता है। और सबसे लास्ट में है ल्यूकोप्लास्ट। सबसे लास्ट में क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, जिसके पास अपना कोई कलर पिगमेंट ही नहीं होता है, लेकिन वो फूड को स्टोर करता है प्लांट में। प्लांट में फूड को स्टोर करने के लिए स्पेशल आइटम बना हुआ है, जो कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोर करता है किसको? स्टार्च और फैट को इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। छोटे छोटे क्या कह सकते हैं, छोटे छोटे जो कंचा आप खेलते हो ना, उस कंचे की तरह जो गोल गोल होता है ना, बटन की तरह होता है, उसमें स्टोर करके रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। यानी ग्रेन्यूल्स क्या करता है? स्टोर करता है। कितने तरह का ग्रेन्यूल्स होगा? या तो फैट ग्रेन्यूल्स होगा या तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स होगा। ग्रेन्यूल्स का काम होता है क्या करना? प्लांट के अंदर फूड को स्टोर करके रखना। फैट को का फैट ग्रेन्यूल्स, स्टार्च का स्टार्च ग्रेन्यूल्स। समझ में आ रहा बात? ये था दुनिया आपके पास किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया का। याद रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बायोकेमिकल प्रोसेस of the cell, and plastids are the main functional unit of plants only in plant cell because they help in the photosynthesis, dark reaction, light reaction। याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। till then write down in your copy and like and
subscribe. Thank you. Bye.